Hello, ninth standard. Welcome to English class. Today we are going to do the fourth supplementary from your textbook, Moments. And the fourth supplementary is In the Kingdom of Fools. Now it is believed that the fools are so dangerous that only the wise people can manage them, because fools kya hote hain na, they don't understand what anybody is trying to tell them, right? So let us see what the story tells us about fools. It is a very interesting story. In the kingdom of fools, both king and the ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. Now here we are talking about a kingdom. और वो किंगडम जो है फूल्स का किंगडम है. वाई फूल्स का है? बिकॉज यहाँ पर जो किंग है, राइट, किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, दे वर फूल्स, दे वर इडियट्स. वाई? बिकॉज they wanted to do something different, and to do something different, you know what did they do? They changed day into night and night into day. मतलब उन्होंने अपने किंगडम में डे टाइम पर वो लोग क्या करते थे? सब लोग सो जाते थे, कंसिडरिंग इट एज अ नाइट. मतलब वो डे को नाइट बोलते थे और वो डे टाइम में सब लोग सो जाते थे. पूरा जो है किंगडम सब सो जाते थे. एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द होल वर्ल्ड वुड बी स्लीपिंग, दैट टाइम दे वुड वर्क. समझ में आया? ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द होल वर्ल्ड वुड बी स्लीपिंग, उस समय वो लोग काम करते थे, राइट, कंसिडरिंग इट एज अ डे. एंड वो लोग जो है they would work at night and they would sleep during the day. Now isn't this thing a foolish thing to do, right? So now let us see in the kingdom of fools what else stupid things they did. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after the dark, and go to bed as soon as the sun came up. अब वहां पर किंग ने ऑर्डर दिया हुआ था कि ड्यूरिंग द नाइट सब लोग जागेंगे, एवरीबडी वुड बी अवेक, राइट, टिल दे आर फील्ड्स. मतलब वो लोग अपने खेतों में भी काम रात को करेंगे. दे वुड डू बिजनेस ऑल्सो एट नाइट, एंड जैसे ही सनराइज होगा everybody will go to bed, right, and go to bed as soon as the sun came up. Sunrise होगा तो सब सो जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. और कोई भी पर्सन अगर डिसओबे करेगा ये किंग के ऑर्डर में, राइट, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी टू डेथ. The people did as they were told for fear of death. अब ऑब्वियस है, लोगों को तो डर लगेगा ही, राइट, क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया है. तो लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड, क्योंकि वो लोग जो है लोग डरते थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया? टू फॉर फियर ऑफ डेथ दे स्टार्टेड फॉलोइंग द ऑर्डर्स. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. Okay, so now these people, everybody in the kingdom, they obeyed, because obvious है कि king ने order किया है और punishment रखा है अगर कोई disobey करेगा. तो सब लोगों को तो डर लगा, fear of death, so they obeyed. The king and the minister were delighted at the success of their project. और king और minister जो थे, they were very happy कि yes, हमारा जो project है वो successful गया. Why? Because everybody is obeying them, right? One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city.
It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. अब एक दिन क्या हुआ, उस सिटी में एक गुरु अपने शिष्य के साथ आया, राइट? अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, दे अराइव्ड एट द सिटी. और डे लाइट था, मतलब ड्यूरिंग द डे दे केम. जब उन्होंने देखा कि कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पर कोई भी नहीं है, एक माउस भी इधर से उधर नहीं जा रहा है. इतनी ब्यूटीफुल सिटी और डे लाइट में लोग है कहाँ? व्हाट आर दे डूइंग? एवरीवन वाज स्लीपिंग. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. अब उनके जो लोगों के जो कैटल्स थे, है ना, भेड़ बकरियां जो थी, कैटल्स जो थे, they were also taught that they have to sleep during the daytime. The two strangers were amazed by what they saw around them. अब ये two strangers, who were those two strangers? Guru and his disciple, right? When they came and they were so amazed कि during the daytime सब लोग सो रहे हैं, even cattles are sleeping, कोई माउस भी जो है स्टेयर नहीं कर रहा है. तो they were shocked actually, they were amazed and wandered around town till evening. अब वो सुबह से लेकर जो है इवनिंग तक पूरे टाउन में इधर से उधर घूम रहे थे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब इवनिंग तक ये दोनों जने, गुरु एंड हिज डिसाइपल, they were roaming here and there, right? और इवनिंग में स्लोली और ग्रेजुअली लोग धीरे धीरे उठने लगे और अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने लग गए. The two men were hungry. अब सुबह से लेके उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था क्योंकि सब शॉप्स बंद थी, सारे लोग सो रहे थे. तो शाम तक तो ये दोनों गुरु और डिसाइपल को बहुत भूख लगी. They were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब इवनिंग के टाइम पर अब ये शॉप्स खुलने लगी तो वो ग्रोसरीज लेने गए. To their astonishment, they found that everything cost the same. अब उनको एक और सरप्राइज मिला. वो एक और सरप्राइज क्या था कि वहां पर जो भी चीज खरीदो सबका कॉस्ट एक ही है, राइट? मतलब ऐसा होता है ना कि अगर छोटी सी चीज खरीदे तो वो कम प्राइस में मिलेगी, कोई बड़ी चीज खरीद रहे हो तो ज्यादा प्राइस होगा, ऐसे ही होता है ना. लेकिन इस किंगडम में एक और चीज कैसी थी? whatever you buy the cost will be same. एग्जाम्पल, और उसका कॉस्ट क्या था? अ सिंगल डुडू. डुडू इज द करेंसी, है ना, जैसे अपने आप पर 1 रुपी 2 रुपी ऐसा होता है. तो उस समय डुडू चलता था, ठीक है. आप कुछ भी खरीदो उसका कॉस्ट क्या है? 1 डुडू. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट अ डुडू. मतलब अगर आप चावल खरीदो, इफ यू बाय राइस और इफ यू बाय अ बंच ऑफ बनानास, कुछ भी लो, आपको डुडू पे करना है, राइट? द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. अब ये गुरु एंड डिसाइपल, उनको तो बहुत अच्छा लगा, राइट? दे वर लाइक कि वाओ, ऐसी तो जगह हमने कुछ देखी ही नहीं कि कुछ भी लो 1 रुपए का ही, राइट? आप राइस खरीदो तो भी 1 रुपी 1 डुडू, और बनानास, बंच ऑफ बनानास खरीदो तो भी 1 डुडू 1 रुपए का, ठीक है. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब उन लोगों ने अपनी ग्रोसरीज ले ली. अब ग्रोसरीज लेने के बाद जो है उन्होंने कुक भी किया, खाना खाया. अब गुरु तो गुरु होता है ना. गुरु ने रियलाइज किया कि ये किंगडम्स जो है ये किंगडम फूल्स का है, राइट? क्यों फूल्स का है? कि सबसे पहले तो पूरा दिन ये लोग सोते हैं एंड एट नाइट दे वर्क. अनदर थिंग, वॉट एवर यू बाय, कोई बड़ी चीज लो या छोटी चीज लो, खाने की चीज लो या क्लॉथ ले लो, कुछ भी ले लो,
सब 1 रुपए का मिलता है, 1 डुडू. So this is the kingdom of fools. And Guru thought कि it is not a great idea to stay over here. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. अब गुरु ने अपने डिसाइपल को बोला कि it is better that we should move away from this place because this place is not for us, right? ये fools का kingdom है और ये सही जगह नहीं है. बट डिसाइपल जो था, जो शिष्य था, उसको वो जगह छोड़कर जानी नहीं थी. ही डिडंट वांट टू गो. व्हाई? बिकॉज उससे लग रहा था कि सारी चीजें जो है इतनी सस्ते में मिल रही हैं, इतनी चीप मिल रही हैं, और उसको तो है सारा खाना वगैरह चीप चाहिए था, राइट? द गुरु सेड they all are fools. This won't last very long. You can't tell what they'll do to you next. अब because he was a guru, तो he was like, दूर तक उन्हें सब समझ में आता था. तो उन्होंने अपने डिसाइपल को, शिष्य को समझाने की कोशिश की that this is a kingdom of fools. और ये सारी चीजें जो अभी ये चल रहा है कि नाइट को डे बना दिया, डे को नाइट बना दिया, सारी ऑल द थिंग्स यू कैन बाय इन 1 डुडू, ये सारी चीजें ज्यादा लंबा चलने वाली नहीं है ना? और वो पता नहीं नेक्स्ट क्या करेंगे. आई डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, do what you want. I am going, and left. अब डिसाइपल जो था, शिष्य जो था, he was like very happy कि इतनी सस्ती चीजें मिलती हैं, मुझे तो यहीं रहना है. And he did not listen to guru's advice. गुरु के wisdom को उसने माना नहीं. So Guru said, it is up to you. कोई problem नहीं, तुमको रहना है तुम रह जाओ. You want to stay, you stay. I am going. And Guru went away. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब डिसाइपल जो था वो वही रहने लग गया. अब हर चीज 1 डुडू की मिलती थी, तो एवरी डे ही वुड ईट, स्टमक फुल. ही वुड ईट बनानास, घी, राइस, व्हीट, सब 1-1 डुडू का मिलता था. तो ही वुड ईट होल डे. अब वो खाकर वो बहुत फैट हो गया था, जस्ट लाइक अ बुल. वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house. He made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब वो एक उस किंगडम में क्या हुआ, वन डे ब्राइट डे यानी डे टाइम में सब सो रहे होते हैं, है ना? उस किंगडम में तो सब सोते थे. एक चोर, एक थीफ जो है रिच मर्चेंट के घर में घुस गया. दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, रिच बिजनेसमैन था. ही एंटर्ड हिज हाउस टू रॉब. वो चोरी करने उस घर में घुस गया. उसने होल किया था एक वॉल में, राइट? अब वॉल में होल करके वो अंदर तो चला गया, उसने चोरी भी पूरा कर लिया. ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट. सब उसने लूट भी लिया, उसने सब चोरी कर लिया. जैसे ही वो उस वॉल से, उसने होल बनाया था उस वॉल में, है ना? वो वॉल से वो जा रहा था. अब क्योंकि वो हाउस जो था वो पुराना था, दैट द हाउस वाज ओल्ड, और उसने वो वॉल पर होल बना दिया, ठीक है ना? अब वो ओल्ड हाउस जो था इट कोलैप्स्ड, मतलब वो ओल्ड हाउस टूट गया और गिर गया. इट कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड. और वो घर जो है उसके सर के ऊपर आकर गिर गया. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. और वो जो चोर जो था, वो थीफ जो था, ही डाइड ऑन द स्पॉट. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड. अब वो थीफ के साथ उसका ब्रदर भी आया होगा. अब वो किंग के पास गया और उसने कंप्लेन की, योर हाइनेस,
when my brother was pursuing his ancient trade, a well fell on him and killed him. अब ये देखो क्या बोलता है किंग को. किंग को वो जाकर कंप्लेन करता है उसका ब्रदर और बोलता है योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, मतलब पुराना हमारा जो काम है, राइट. अब उनका पुराना काम क्या था? चोरी करना, है ना. थीफ का काम क्या होता है? चोरी करना, है ना. तो वो बोलता है किंग को कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो बिजनेस है, चोरी करना हमारा जो काम है, वो मेरा ब्रदर कर रहा था. तो वॉल जो है, दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड वो दीवार के कारण वो ही डाइड, मतलब दीवार ने उसको मार डाला. दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम. और वो मर्चेंट जिसके घर की दीवार गिरी थी, उसको जो है ही इज टू बी ब्लेम्ड, उसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके घर की दीवार जो थी वो गिरी और मेरा ब्रदर को उसके मतलब मेरा ब्रदर मर गया. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. और फिर वो चोर का भाई किंग को क्या बोलता है कि वो मर्चेंट को स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, है ना. क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं थी, इसीलिए तो वॉल गिर गई. और वो वॉल गिरी तो मेरा भाई जो है मर गया वो वॉल के नीचे. तो मर्चेंट की जो है, मर्चेंट को ब्लेम है, राइट. वो मर्चेंट की गलती है कि उसने स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों नहीं बनाई. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. तो अब ये थीफ का ब्रदर जो है वो राजा को बोलता है कि तुमको रॉन्ग डूअर को पनिश करना चाहिए. अब ये रॉन्ग डूअर यहाँ पर कौन? मतलब मर्चेंट. मर्चेंट क्यों रॉन्ग डूअर? कि भाई उसने अपने घर की दीवार स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनवाई, समझे ना. और फिर वो बोलता है कि उसको पनिश करो और जो मरा है उसकी फैमिली को जो है जस्टिस दिलवाओ. The king said, justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. अब किंग जो फूल था, राइट, वो बोलता है डोंट वरी, जस्टिस मिलेगा तुमको. एंड एट वंस समन्ड मतलब कॉल्ड. और किंग ने किसको बुलाया? ओनर ऑफ द हाउस. ओनर ऑफ द हाउस कौन था? मर्चेंट, है ना. उसके घर पे वो चोरी करने गया था तो मर्चेंट को बुलाया. मर्चेंट को बुलाकर क्या बोला? When the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? Such and such, your highness. अब merchant आया, king ने उसको question किया, what is your name? He said such and such. Such and such यानी कुछ भी कोई नाम बोला. Your highness, were you at home when the dead man burgled your house? अब देखो question क्या पूछते हैं king. बोलते क्या तुम घर पर थे? When the dead man burgled your house, ये जो आदमी जो मर गया, राइट, जब वो चोरी करने आया था तो क्या तुम घर पर थे? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. तो मर्चेंट बोलता है यस, राइट, उसने वो मेरे वॉल पर होल कर कर अंदर आया था मेरे घर के अंदर चोरी करने, और क्योंकि वॉल जो है वो वीक थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना, तो वो वॉल गिर गई और वो वॉल उसके ऊपर गिरी और वो मर गया. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. You have to punish. We have to punish you. अब किंग बोलता है कि भाई तुम्हारी जो वॉल थी वो वीक थी और उसके कारण जो है ये एक मतलब पर्सन की जो जान चली गई है और उसका भाई जो है वो जस्टिस मांगने आया है, तो तुमने उसके भाई को जो है मार डाला है, तुमने उसके भाई का मर्डर किया है, तो तुमको पनिशमेंट मिलना चाहिए. लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब मर्चेंट क्या बोलता है? मेरी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो वॉल मैंने थोड़ी बनाई थी. जिसने मेरे को ये वॉल बना कर दी, राइट, उसने ही ये वॉल सही नहीं बनाई, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. हु इज दैट? My lord, this wall was built in my father's time.
I know the man. He's an old man now. He lives nearby. अब वो मर्चेंट बोलता है कि अब ये घर तो मेरे फादर के टाइम का बना हुआ है ना, तो ये जो वॉल है वो भी जब मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है, यानी पुराना है, राइट। लेकिन मैं जानता हूं कि किसने ये घर बनाया था, मतलब किसने ये वॉल बनाई है। अब वो पर्सन क्योंकि फादर के टाइम का है, तो वो पर्सन कैसा होगा, ओल्ड हो गया होगा अभी तक, है ना। तो बोलते हैं कि आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो ओल्ड मैन है, राइट, बट वो मेरे बाजू में ही रहता है, मेरे मेरे नेबर, मतलब ही लिव्स नियर बाय। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो किंग ने मैसेज भेजा, राइट, उनको मैसेंजर भेजा, किसके पास, वो ओल्ड मैन के पास जिसने वो वॉल बनाई थी, वो ब्रिक लेयर के पास भेजा उसको, और कि भाई वो ब्रिक लेयर को लेकर आओ जिसने ये वीक वॉल बनाई है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माय लॉर्ड, आई डिड। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब वो किंग बोलता है कि तुमने बनाई है, वो अग्री करता है हाँ मैंने बनाई है। तो बोलता है ऐसी कैसी वॉल तुमने बनाई कि ये पुअर मैन के ऊपर गिर गई और ही इज किल्ड, तो तुमने उसका मर्डर किया है, तो अब तुमको पनिशमेंट मिलेगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day and with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब ये जो ओल्ड ब्रिक लेयर है, जब राजा जो है वो डेथ के लिए मतलब ऑर्डर कर रहा था कि ही इज टू बी हैंग्ड, ही इज टू बी किल्ड, राइट, तो वो ब्रिक लेयर बोलता है कि नहीं नहीं सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सही बात है कि ये वॉल मैंने ही बनाई है, राइट, और ये वॉल सही तरीके से नहीं बनी, आई अग्री, लेकिन फिर भी मेरा ये फॉल्ट नहीं है। वो क्या बोलता है, मेरा फॉल्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि जब मैं ये वॉल बना रहा था तब मेरा माइंड इस वॉल पर नहीं था, मतलब while I was making this wall, right, I was not concentrating on the wall while I was making, है ना, मतलब मैं ध्यान से इस वॉल को नहीं बना रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. तो बोलता है कि मेरा माइंड वॉल बनाने में नहीं था, उसका माइंड किस पर था, वो डांसिंग गर्ल को देख रहा था। और बोलता है मुझे याद है वो डांसिंग गर्ल पूरी स्ट्रीट में अप एंड डाउन जा रही थी और उसकी एंकलेट्स जो है, पायल जो है एंकलेट्स, वो जिंगल करते हुए जा रही थी, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर था। आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall as I was building. तो मेरा पूरा ध्यान वो डांसिंग गर्ल पे था, तो मैंने ध्यान से जो है ये वॉल नहीं बना पाया। You must get that dancing girl. I know where she lives. तो वो ब्रिकलेयर बोलता है कि वो डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है ना, क्योंकि उसने ही मेरा माइंड डाइवर्ट किया, नहीं तो मैं तो अच्छी तरह से वॉल बना देता। अगर वो वहां से नहीं आती तो मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता, तो मेरी वॉल अच्छी तरह से बन जाती। अब क्योंकि वो वहां से यहाँ स्ट्रीट पर चल रही थी और एंकल्स जिंगल करती हुई चल रही थी, तो मेरा ध्यान पूरा डांसिंग गर्ल पे था, तो उसकी गलती है, उसके कारण मैं ध्यान से वॉल बना नहीं पाया, और मैं जानता हूँ वो कहाँ पर रहती है, तो उसकी गलती है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए।